سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لائی، اور بارش بھی ہونے والی ہے لیکن آپ لوگ یہاں ہیں، اللہ کرے تب تک نہ ہو۔ سب سے پہلے جو آج کی پریس ٹاک کا مقصد ہے وہ ملک کے اندر اس وقت جو ایک طرف تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کے کرائے کے ترجمان ہیں جن کو ہر روز کرائے کے ترجمانوں کا اجلاس بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ جتنا عمران صاحب بولتے ہیں، اور اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ ان کو کوئی غرض نہیں کہ پاکستان کی عوام کے پاس ہر مہینے بجلی کا بل آتا ہے، ان کو کوئی غرض نہیں کہ پاکستان کی عوام کے پاس ہر مہینے گیس کا بل آتا ہے، ان کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ ہر روز پاکستان کی عوام چینی خریدتی ہے، گیس خریدتی ہے، آٹا خریدتی ہے، بجلی کا بل دیتی ہے ہر مہینے، انڈے خریدتی ہے، تیل خریدتی ہے، کوئی غرض نہیں۔ لیکن ایک ہی پیغام ہے کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو، اور اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ کون سا وزیر کی کارکردگی کیا ہے، اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ اپنی وزارت میں کون سا وزیر اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ پہلے تو کوئی وزیر کام ہی نہیں کرتا۔ لیکن بات صرف کارکردگی ایک چیز پر ہے کہ مخالفین کو گالی دو، مخالفین پر جھوٹے الزامات لگاؤ، مخالفین کے اوپر کیچڑ اچھالو، جھوٹ بولو، اور ایک مصنوعی بیانیہ جو 3 سال سے جاری ہے، جو 2 سال پہلے 2014 میں، 2 سال 2018 میں، اس کے بعد کنٹینر پر جاری رہا، آج بھی وہ جاری ہے۔ آج کی پریس ٹاک کا مقصد یہ دل ہلا دینے والی تکلیف دہ تصویر ہے، اور یہ تصویر کیا دکھاتی ہے؟ یہ تصویر اس حکومت کا اعمال نامہ ہے، وزیر اعظم مسلط کا اعمال نامہ ہے۔ اس تصویر میں رمضان میں، روزے میں، کرونا میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بزرگ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ 1 کلو چینی کی قطار ہے، 1 کلو چینی کی قطار ہے۔ یہ رمضان میں، روزے میں اور کرونا میں یہ 1 کلو چینی کی قطار ہے۔ بزرگ، بہنیں، بیٹیاں، مائیں کھڑی ہیں یہاں، اور ان سے بات کرو تو آگے سے جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ یہ ہے کارکردگی۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس میں اس تصویر، چونکا دینے والی، تکلیف والی تصویر، دکھ اور درد کے ساتھ میں اس تصویر کے اوپر ان کے اعمال نامے آپ کو بتاتی ہوں۔ جو چینی مسلم لیگ نون کے دور میں 52 روپے پہ ملتی تھی، اس کا آج رعایتی ریٹ جو اس قطار میں کھڑے ہو کر خریدا جا رہا ہے وہ 83 روپے ہے۔ اور بازار میں جو چینی کی قیمت ہے وہ 105 روپے تک چلی گئی ہے، اور یہ اس وقت جس وقت چینی انکوائری کمیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ 83 روپے رعایتی ریٹ اور 105 110 روپے کلو بازار کا ریٹ ہے۔ اور جہاں رعایتی ریٹ مل رہا ہے وہاں بھی 1 کلو سے چینی نہیں زیادہ مل سکتی۔ یہ ہے 1 کلو چینی کی رعایت، 83 روپے رعایتی ریٹ کے اوپر 1 کلو چینی کی قطار، اور وہ بھی شناختی کارڈ دیے بغیر۔ مطلب جو 1 کلو چینی کی قیمت 83 روپے دے رہا ہے اور 105 110 روپے دے رہا ہے، وہ شناختی کارڈ دے کر لی جا سکتی ہے۔ اور 52 روپے چینی والے چور تھے، اور یہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اس تکلیف میں ڈالا ہوا ہے وہ جھوٹے مسلط کردہ ٹولہ روز جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے بعد ان کے اپنے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس
सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स, जो मैं आपको दो चीज़ों का मुआवजा बताऊंगी। पहले तो जो मेरे जवाब में फ़ौरन कतार लग जाएगी किराए के तर्जुमानों की, झूठों की, उनको लिए मैं इतला दे दूं कि ये जो जितने रेट्स मैं अभी पाकिस्तान की आवाम को आपके तवस्सुत से बताऊंगी वो तमाम रेट सरकारी हैं, हुकूमत के अदादो शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स हैं दो तरह के। एक वो हफ्ता जब वजीर आजम ने रमज़ान से पहले एक बयान दिया कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ रमज़ान के रियायती रेट्स को, सस्ते बाज़ारों को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। उसमें एक हफ्ते जो पिछला हफ्ता था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई बढ़ी है, 19%। और फरवरी के बाद कोई भी एक महीना ऐसा नहीं, कोई भी एक हफ्ता ऐसा नहीं जिसमें जो महंगाई है वो 13% से कम हुई हो। ये है वो अमालनामा। फरवरी के बाद कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं, महीना नहीं जिसमें 13% महंगाई ना बढ़ी हो। और रमज़ान के हफ्ते में जो अप्रोचिंग टू रमज़ान था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई में इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ जो कहते हैं ना मईशत बेहतर हो रही है, मैं भी उस पर आऊँगी, इनकी माशी सूरत हाल की बेहतरी पे भी मैं भी आती हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ जो खाली मुर्गी है, मुर्गी है फार्म ब्रॉयलर 1 kg लाइव, इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1 kg वो 138.79 रुपए पर केजी थी। और सिर्फ इस साल अगर मैं उसका मुआवजा करूं इसी तारीख से कि पिछले साल 16 अप्रैल को ये क्या थी, तो उसी चिकन की कीमत जो थी वो 138.69 और इस वक्त 265.82। आसान लफ्जों में 139 पिछले साल और 266 इस वक्त। उसके साथ साथ टमाटर पर किलो पिछले साल 30 रुपए, इस वक्त जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 55 रुपए हो चुकी है। उसके साथ साथ जो अंडे हैं, अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत, जिन्होंने अंडे के जरिए अवाम को गुर्बत से निकालना था, उसकी पिछले साल इनकी हुकूमत में 114 रुपए दर्जन अंडे और इस वक्त 166 रुपए दर्जन अंडे। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो तेल है, जो पकाने का तेल है, वो पिछले साल 1283 रुपए, इस वक्त 1540 रुपए, और उसमें 20% इजाफा हुआ है। इस तरह अंडे में पिछले साल में 46% इजाफा हुआ है। इसी तरह टमाटर में 76% इजाफा हुआ है। इसी तरह खाली मुर्गी में 92% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आ रही हूँ। हाँ जी, तेल 5 लीटर का बताया जी। तेल जो है जो 5 लीटर 1282 पिछले साल, इस साल 1540 5 लीटर का। इसी तरह चीनी में तो बड़ी बेहतरी आ रही है, इंक्वायरी कमीशन बन गया है, तो चीनी जो रियायती रेट है वो 83 रुपए है, बाजार का रेट 110 रुपए है और 120 रुपए तक चीनी मिल रही है। ये इनकी कारकर्दगी है। उसके बाद जो वेजिटेबल घी है, जो वेजिटेबल की घी 2.5 kg का टिन होता है, उसकी इनके अदादो शुमार के मुताबिक पिछले साल 645 रुपए, इस साल 770 रुपए, 770 रुपए, 20% इजाफा। फिर उसके बाद जो आटा है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। 35 रुपए का आटा, 90 रुपए, 100 रुपए, और इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 88 रुपए 20 किलो का तोड़ा,
और इस साल 877 पिछले साल और इस साल 988 रुपए 988 रुपए, जो कि 13% इजाफा है। जिस वक्त अभी आटे के ऊपर और गंदम के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इमरान साहब। और उसके बाद जो ये हफ्ता जो इस कतार की स्टोरी सुनाता है, इस कतार, ये खाली चीनी की कतार नहीं है। चीनी की कतार ये आपको इसलिए नजर आ रही है कि ये शनाख्ती कार्ड देकर 1 किलो चीनी से ज्यादा नहीं मिल सकती। उसके अलावा केले, रमजान का जो हफ्ता था, जो केले हैं वो 104 से 121 रुपए और 140 रुपए तक बाजार में मिल रहे हैं। 140 रुपए तक एक दर्जन केला इस हफ्ते में बाजार से मिल रहा है, जो कि 17 रुपए एक हफ्ते में महंगा हुआ और जो कि 16% बनता है। उसके साथ साथ जो टमाटर है पर केजी, टमाटर पर केजी जो है वो 48 रुपए से 55 रुपए। ये अदादो शुमार हुकूमती हैं, लेकिन इस वक्त 65 रुपए टमाटर पर केजी मिल रहा है। 65 रुपए। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सस्ता बाजार नहीं, कोई रमजान बाजार नहीं, ये इनके हुकूमती अदादो शुमार हैं। उसके बाद जो आटा है 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो का जो तोड़ा मिलता है आटे का, वो इस हफ्ते 962 रुपए से 988 रुपए, जो कि ये अदादो शुमार हैं। वैसे 1000 तक और उसके ज्यादा 20 किलो आटा मिल रहा है, जो कि 27 रुपए ज्यादा हुआ है एक हफ्ते में। उसके बाद बीफ, मटन, जो चावल बासमती, चिकन, वेजिटेबल घी, मस्टर्ड ऑयल और इसके अलावा आटा, चीनी, ये है इनका अमाल नामा। और इस अमाल नामे के अंदर जो होश रबा इजाफा हुआ है खुर्दो नोश की अशिया में, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जो कि 51 आइटम्स के ऊपर मबनी है। जो एक हफ्ते में इंक्रीज है वो 51 से 52 आइटम्स का इंक्रीज है। और एक हफ्ते पहले इमरान साहब, बहुत अच्छी मईशत चल रही है, ट्वीट करते हैं, सुबह उठते हैं किस कैफियत में होते हैं कुछ पता नहीं, ट्वीट करेंगे कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, ट्वीट करेंगे असद उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैंडसम वजीर आजम का 2018 में पोस्टर बॉय असद उमर साहब ने बहुत अच्छा, और वो आइंस्टाइन है, वो पता नहीं अरस्तू हैं, वो पोस्टर बॉय हैं। 20 साल से उनका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उनको पता है कि इमरान साहब ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, जिन्होंने तारीखी रिसेशन में मुल्क को धकेला। लेकिन इमरान साहब ने कहा कि इससे बेहतर मईशत कोई नहीं चला सकता जो असद उमर चला रहे हैं। फिर एकदम खबर आई कि असद उमर फारिग, हैंडसम वजीर आजम का पोस्टर बॉय फारिग, एकदम खबर आई। उसके बाद जिन्होंने याद रहे, असद उमर साहब ने, पोस्टर बॉय ने 2 मिनी बजट दिए और उस वक्त कहा IMF जाएंगे, IMF नहीं जाएंगे। IMF की जब जाने लगे, IMF की निगोशिएशन शुरू थी, टीम आ गई थी इधर डी चौक पे, और उसमें क्या हुआ, असद उमर साहब फारिग हो गए निगोशिएशंस के दौरान। उसके बाद लाए गए IMF के नुमाइंदे, IMF के तर्जुमान, ब्रीफ केस लेकर आए पीपल्स पार्टी के वजीर हफीज शेख साहब। अब तो जी हफीज शेख साहब, इमरान साहब ने कहा से बेहतर कोई मईशत नहीं चला सकता। हफीज शेख साहब वो वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर ने इतना कर्जा नहीं लिया। 14,000 अरब का जो टोटल कर्जा पिछले 3 साल में इमरान साहब ने लिया, वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जे का हुजम है। और हफीज शेख साहब वो वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर का उनको तमगा मिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर, हम तो सारे चोर थे। उसके बाद जी क्या हुआ, उन्होंने IMF से निगोशिएशन शुरू की। निगोशिएशन नहीं की, उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया। ऐसी शराइत जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत में,
बेरोजगारी में और एक कमर तोड़ महंगाई में धकेल दिया। कर्जा तो लिया और मनफी 0.4% ग्रोथ रेट, 13% महंगाई, सबसे ज्यादा कर्जा तारीख में, IMF के हवाले पूरे मुल्क को कर दिया। आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इमरान साहब के ब्रीफ केस मिनिस्टर IMF के नुमाइंदे हफीज शेख साहब पेश किए गए। हफीज शेख साहब को एक दिन पता चला कि वो भी फारग, और वो इतने काबिल थे कि इमरान साहब ने उन्हें सेनेटर की सीट दी, उनको टिकट दी, उनको इलेक्शन लड़वाया और उसके बाद वो हार गए। उनके हारने के बाद वो इतने काबिल थे कि उनके हारने के बाद वजीर आजम हाउस में बुलाया गया। अपने दफ्तर में इमरान साहब ने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और कहा, प्रेस स्टेटमेंट भी दी कि आज भी आप मेरे वजीर खजाना हैं और मुझे यकीन है कि मईशत पाकिस्तान की सिर्फ हफीज शेख साहब बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे पाकिस्तान के अवाम की। उसके बाद आ गए जी FBR में शब्बर जैदी, जो कि टैक्स के गब्बर सिंह थे। उन्होंने कहा, इमरान साहब ने साथ बिठाया, आपको याद होगा वो प्रेस टॉक, अपने साथ बिठाया और कहा कि अब मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो शब्बर जैदी साहब करेंगे। और शब्बर जैदी साहब इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, इतना करेंगे कि महंगाई भी कम हो जाएगी, टैक्स भी तारीखी। जब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, माफिया और कार्टल्स मुसल्लत हों, इमरान खान के दाएं और बाएं बैठता हो, तो पाकिस्तान की आवाम क्या पागल है कि वो इनको टैक्स देगी? महंगाई तारीखी और टैक्स अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर 2018 तक नहीं पहुंची। टैक्स कलेक्शन अभी तक टैक्स टू GDP वहां तक नहीं पहुंचा जो मुस्लिम लीग नून के दौर का था। तो वो गब्बर सिंह जो आए थे वो भी फारग, उनको भी फारग कर दिया गया। फिर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए पर्ची निकली, कुरा निकला, हमाद अजहर साहब को बनाया फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद खबर आई 1, 2 दिन, 3 दिन फारग। फिर जी म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है काबीना के अंदर, तुम वहां से उठो कुर्सी पे, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। इमरान साहब गाना गाते हैं, गीत गाते हैं तारीफों के, उसके बाद म्यूजिकल चेयर्स उसी गाने और गीतों के ऊपर खेली जाती है। तुम उठो उस कुर्सी पर बैठो, तुम उठो इस कुर्सी पर बैठो। भाई ये वजीर है, वो वजीर अपनी इज्जत का ख्याल करे, खुदा का वास्ता है। अब अगर वजारत मिले तो मत लेना अगर इज्जतदार हो तो, क्योंकि इतनी बेइज्जती, क्योंकि आपकी कारकर्दगी आपकी वजारत से जांची नहीं जाती, आपकी कारकर्दगी आपकी गाली से, आपकी इल्जाम तराशी से और झूठ बोलने से जांची जाती है। वहाँ एप्रिसिएशन, जिसको आप कारकर्दगी समझते हैं, वहाँ एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गाली कितनी देते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितनी बड़ी इल्जाम तराशी करते हैं, कितना बड़ा यू टर्न करते हैं और कितनी बड़ी इमरान साहब की गुलामी करते हैं, आपकी इस बात पे जांची जाती है। अब जी 3 दिन पहले खबर आई, म्यूजिकल चेयर दोबारा शुरू हो गई। उस पे इमरान साहब ने क्या कहा? इमरान साहब ने कहा वो सारे वजीर जिन्होंने 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, 5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया, मुल्क में तारीखी कर्जा लिया, मुल्क का टैक्स अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, वो सब फारिग। क्योंकि वो तो ऐसी ड्रीम टीम थी, हैंडसम वजीर आजम से लेकर, पोस्टर बॉय से लेकर, उसके बाद आइंस्टाइन से लेकर, पीपल्स पार्टी के वजीर से लेकर, गब्बर सिंह से लेकर, अब आ गए जनाब कौन? पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर शौकत तरीन साहब, जिनके अपने दौर में ग्रोथ रेट मनफी था और 16% महंगाई थी। और पहले तो मुझे ये बताएं कि जब यहाँ कंटेनर पर बिजली के बिल जलाए जाते थे, हुंडी के जरिए पैसे मंगाओ, बंद कर दूंगा, मेरे पास 20 साल से फाइनेंस टीम बन रही है। पहले तो मैं PTI के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, उनके जो काबीना में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो पार्लियामान में बैठे हैं, कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना बन सके? आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि उमर अयूब साहब, अभी सुना होगा पिछले हफ्ते बोल रहे थे, जिन नवाज शरीफ के गुण गाते थे, उनको मतलब इतना ज़र्फ नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि अल्फाज तो तरीके के इस्तेमाल करें, लेकिन तहजीब ही नहीं है, क्योंकि गुलामी इमरान साहब की है। जितना बड़ी गाली दोगे, जितना बड़ा झूठ बोलोगे, जितनी बड़ी इल्जाम तराशी करोगे, लेकिन ये गलत साबित हुआ। उमर अयूब साहब
1900 अरब का टीका लगाकर फारग कर दिए गए। जब बिजली माफिया की जेबें भर गई, जब बिजली कार्टल्स की जेबें भर गई, उमर अयूब साहब जो कि तवानाई के एक्सपर्ट थे, 1900 अरब का टीका लगाकर फारिग कर दिए गए। कोई इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी अनाउंस शायद हो जाए इन सारे वजीरों पर, क्योंकि याद है दवाई वाले वजीर पर भी इंक्वायरी, आटा वाले पे भी, चीनी वाले पे भी, बिजली वाले पे भी, गैस वाले पे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती, कर्जे की भी इंक्वायरी, वो कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आती। उसके बाद ये तमाम जो परफॉर्मेंस इमरान साहब की, बात सिर्फ एक है, जब फेल्ड कप्तान, मैं कप्तान हूं अपनी टीम का, जब फेल्ड कप्तान होगा, इनकॉम्पिटेंट, नालायक, नाअहल, चोर, कार्टल्स और माफिया की सरपरस्ती करता हुआ वजीर आजम मुसल्लत किया जाएगा इमरान साहब की शक्ल में, वोट चोर, तो फिर उसके बाद आपका अमाल नामा ये होगा, आपका अमाल नामा ये होगा, और आप जितनी मर्जी म्यूजिकल चेयर्स खेलें, एक को उठा के दूसरी, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये होता है काबीना रीशफल में इमरान साहब की, स्टैंड अप फ्रॉम दैट चेयर, सिट डाउन ऑन दैट चेयर। जो एक जगह फेल है, जिसने एक जगह मुल्क अवाम को बेरोजगार कर दिया, महंगाई का तूफान ले आया, तारीखी कर्जा हो गया, बिजली के अंदर 1900 अरब का करप्शन हो गई, टीका लग गया, अवाम के बिजली के बिल नहीं दिए जाते, दवाई नहीं ली जाती, वो कैसे दूसरी वजारत के अंदर कामयाब होगा? और जो कप्तान है, हैंडसम वजीर आजम है, वो जब तक बदला नहीं जाएगा, जब तक उसमें रद्दोबदल और तब्दीली नहीं होगी, उस वक्त तक कोई फायदा और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अभी मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, मेरा ख्याल है उनका नाम कोई कराए के तर्जुमान है, कोई गिल साहब है शायद, शान जी, क्या नाम बताया, शहबाज गिल साहब। वो शहबाज गिल साहब आज लगे हुए थे शहबाज शरीफ साहब की बेल पे। आप कौन है? आप किस हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तर्जुमानी कर रहे हैं? आपकी क्या कानूनी हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें? मैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करती हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अभी सब जुडिस है। वो बेल जो हाई कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस हुई, पूरे मीडिया ने सुना, ओपन कोर्ट में अनाउंस हुई, हम इंतज़ार करते रहे, 3 दिन कहा गया कि तहरीरी फैसला है। बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि कभी कानूनी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट ऑफ बेल के बाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अलाउड लिखा हो और उसके 3 दिन के बाद इख्तलाफी नोट सामने आया हो कि बेल अलाउड नहीं हुई और ये रेफरी जज को जाएगी। ये पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसके बाद हम 3 दिन ये इंतज़ार करते रहे कि हुक्मनामा तहरीरी लिखा जा रहा है। दोनों जजेस ने अपने एक डाइसेंटिंग नोट में और एक अप्रूव्ड बेल के ऑर्डर्स में दोनों ने लिखा है कि बेल अनाउंस की गई थी ओपन कोर्ट में। उसके बाद इख्तलाफी नोट जो है उसका डिसाइड किया दूसरे जज साहब ने। तो दोनों ने ये लिखा है। शहबाज गिल साहब कौन है, क्या कानूनी हैसियत रखते हैं, हाई कोर्ट की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? और जिस वक्त नैब से हाई कोर्ट में ये पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित हुई या उनका लिंक किसी मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी ऐसे अमल से है जिससे करप्शन साबित होती है, तो कंसीड किया नैब ने। और ये जज साहब ने अपने फैसले में भी लिखा है। मैं फैसले की तफसील में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन है, ये हमारा ईमान है कि हमें शहबाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा, वो सुरखरू होंगे हमेशा की तरह। और ये जो शहबाज गिल साहब हैं, इनके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सुओ मोटो लें, क्योंकि ये किस कानूनी हैसियत में वो तमाम डिटेल्स नैब ने जज हजरात साहब के सामने रखी, हमारे लॉयर ने रखी, जिस पर बेल अप्रूव हुई। शहबाज गिल साहब, आपकी नौकरी
4 دفعہ تو فہرست آ گئی ہے میوزیکل چیئر کابینہ ریف شفل کی، آپ کو کوئی وزارت نہیں ملی. ایک لاہور پلانٹ کیے ہوئے شہزاد اکبر صاحب، کوئی وزارت نہیں ملی، کیونکہ جن کو رکھا ہی صرف ٹاؤٹ بنانے کے لیے، کمیشن کھانے کے لیے اور کرائے کی ترجمانی جھوٹ بولنے کے لیے ہو، ان کو وزارتیں نہیں ملتی. لیکن لینا بھی نہ، جن کو وزارتیں مل رہی ہیں ان کا حال بھی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. تو یہ مختصر آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک پچھلے سال سے اس سال کا موازنہ مہنگائی کا، اور 51 آئٹمز جو پچھلے ایک ہفتے میں مہنگے ہوئے، کابینہ کی ری شفل جو اس مہنگائی کا باعث ہے، اس نالائق نااہل چور حکومت جو وزیر اعظم عمران خان مسلط ہے، اس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اور ابھی جو بجٹ آنے والا ہے، جتنے مرضی مانگے تانگے کے وزیر لے آئیں، ادھارے وزیر لے آئیں، یہ بجٹ انشاءاللہ اس پارلیمان سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں سے آپ کے اپنے نمائندے اس بجٹ کو پاس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ملک کی تاریخ میں اتنا عوام دشمن بجٹ نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے IMF کا ترجمان تھا، اب ورلڈ بینک کا ترجمان اور IMF کا ترجمان لائے گئے ہیں. ان لوگوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور ان لوگوں نے فرار ہو جانا ہے، لیکن ہونے نہیں دینا. ان کا نام ECL پہ ڈالیں گے. یہ بریف کیس کابینہ، بریف کیس وزیر اعظم، پوسٹر بوائز، ان سب کو پاکستان کی عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا. اچھا میڈم، ایسا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آج شوکت فیاض شریف صاحب نے کہا پچھلے 2 سال کی معاشی پالیسی پہ تنقید کی ہے اور ان کو فیلئر قرار دیا، جس کو اسد عمر صاحب نے اس کو پروٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پالیسیاں ناکام نہیں ہوئی. ایک اس کے حوالے سے بتا دیں. دوسرا، آپ نے کہا کہ صبح پتہ نہیں کس کیفیت میں وہ دیتے ہیں بیان عمران خان صاحب، وہ تو صبح جہاد کے لیے نکلتے ہیں، انہوں نے بتایا تو ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ کس کے لیے نکلتے؟ جہاد کے لیے، انہوں نے خود کہا. 3 سال سے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. اتنی کم ظرفی ہے. میں اب مزید اس بات میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں. جو حفیظ شیخ جب ان کو وزیر بنایا گیا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنا دیا گیا اور پاکستان وہ بعد میں آئے. عمران صاحب نے خود کہا میں ان کو نہیں جانتا کہ حفیظ شیخ صاحب کون ہیں. اور جب ان کو فارغ کیا گیا، یہ نہیں پتا کہ پہلے ملک سے بھگا دیا گیا، اس کے بعد فارغ کیا گیا یا اس سے پہلے فارغ کیا گیا. ابھی شوکت ترین صاحب جب وزیر بنے، اس سے 1 ہفتہ پہلے ایک ٹاک شو کے اندر شوکت ترین صاحب نے ان نالائکوں کی چارج شیٹ ان کو دی تھی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنایا گیا یا ملک میں پہلے بلایا گیا. اور اسی طرح عمران صاحب کی جو کیفیت ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک قرضہ کمیشن بنایا تھا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے کوئی ذہنی مریضوں کا کمیشن بنا دیں، ہم اس کو فنڈ کریں گے، جہاں پہلے ان کا علاج کر لیں جن کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. لیکن انہوں نے جس طرح پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوٹ بولے، پاکستان کی عوام کو کاغذ لہرا کے جھوٹ بولے، وہ تو پاکستان کی عوام جان چکی ہے، وہ احتساب کے بیانیے کو بھی. اور جس طرح انہوں نے اپنی پرفارمنس کے اوپر ہر روز جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ جو جھوٹ ہے وہ ہر مہینے بجلی، گیس، دوائی کے بل اور ہر روز چینی، آٹا، انڈے، تیل سے ظاہر ہے کہ ان کی کیا کارکردگی اور پاکستان کی عوام کس طرح کی مہنگائی میں اس وقت پس رہی ہے. پی ڈی ایم کی تحریک جو تھی حکومت کے خلاف، وہ اب کس اسٹیج پہ آئی؟ عید کے بعد کیا پلان ہے؟ بڑی پارٹی جو تھی پارٹی علیحدہ ہوئی ہے کہ مریم نواز کراچی جا رہی ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی سے ملاقات کا پلان ہے؟ یہ ملاقات ہوگی؟ دیکھیں، ابھی سندھ گئے تھے عمران صاحب، 3 سال سندھ نہیں یاد آیا، سندھ نہیں یاد آیا. 450 ارب سندھ میں صرف ایک الیکشن، اتنا خوف، صرف 249 مفتاح اسماعیل کا الیکشن اور سندھ کے لیے 3 سال بعد 450 ارب کا تحفہ. اور 450 ارب میں جو 300 ارب کے منصوبے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور کے ہیں، جو احسن اقبال صاحب نے جن کی تمام حقیقت بھی بتائی. لیکن 249 میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لے. پھر پتہ نہیں 11 ارب کا کراچی کا کوئی پیکج تھا. 11 ارب آپ کے پاس نہیں ہے. جس کی جیب ATM سے چلتی ہو، جس کا کچن ATM سے چلتا ہو، جس کا پورا خرچہ ان مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے چلتا ہو، اس کو کیا لگے آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گیس، دوائی، انڈے، تیل مہنگے ہو گئے، اس کو اس بات سے کیا غرض؟ تو یہ سندھ کے عوام کے لیے، اور ان کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جتنی عوام عقل مند ہے نا،
जितनी आवाम अक्लमंद है उनको पता चल गया है कि 50 लाख घर का जो शोशा था, आज उनकी जेबों से पैसे लेकर उनको कर्ज दिलवा कर उनको वो घर दिलवाए जा रहे हैं। एक घर इमरान साहब ने उस 50 लाख घरों में से अभी तक नहीं दिया। इसी तरह 1 करोड़ नौकरी में से 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए 2.5 साल में, 5 करोड़ अवाम गरीब हो गई, और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की अवाम जानती है। इसीलिए 249 मिफ्ता इस्माइल को 29 अप्रैल को वोट देकर इन नालायकों, नाअहलों, चोरों, करप्ट टोले से बदला 249 की आवाम लेगी। मैम और पीडीएम की जो बात है उसमें मौलाना साहब ने प्रेस टॉक कर दी है। उसमें मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को नज़रसानी करने को कहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द वो वापस मौलाना साहब को अपना जवाब देंगे। मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ कि तकरीबन 2.5-3 साल हुकूमत और अपोजिशन के साथ साथ चलते हुए पूरे हो चुके हैं। हुकूमत आपने जो कहा मैं सारा इत्तेफाक कर लूँगा, लेकिन अपोजिशन ने क्या किया आवाम के लिए उठ के? आपको मेरा ख्याल है आपने फॉलो नहीं किया। जो पीडीएम की सारी तहरीक है वो महंगाई के ऊपर है। पीडीएम की सारी जो कोशिश है वो महंगाई के ऊपर है, और जितने जलसे हुए, जितनी तहरीकें हुई, जितने हमने मार्चेस किए, वो तमाम महंगाई के ऊपर थी। लेकिन इस हुकूमत को, इस वज़ीर आज़म मुसल्लत को नालायकी, नाअहली की जो सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है, और हमारी आज भी बयानियाँ पाकिस्तान की आवाम के लिए है। इनका आज भी बयानियाँ क्या है कि दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाओ, और अब अपनी सियासी जंग जब हार चुके हैं, हर हल्के से बाई इलेक्शन से आवाज़ आ रही है, तो अब एक और नई जो मुहिम है, जो प्लांट किए हुए कमीशन खोर पंजाब में, वो जो अब घर रात, उनका क्या काम है क्रेन लेकर रायविंड पहुंच जाओ, उनका क्या काम है कंटेनर लेकर रायविंड पहुंच जाओ। ये है तरजीह, ये पाकिस्तान की आवाम को सब पता है। मैडम ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि अपोजिशन का जो तहरीक थी वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ थी। अभी जो आपने दादोशुमार दिए हैं उसमें से आधे से ज़्यादा गलत हैं। रेट जो आटे का रेट दिया वो जाके आप अगर मार्केट में चेक करें तो वो 300 रुपया महंगा मिल रहा है जो आपने रेट बताया। इसके साथ चीनी जो है वो दस्तियाब ही नहीं है। शहरी के टाइम और अफसारी के टाइम ना गैस मिलती है ना बिजली मिलती है। तो आप तो सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, आपके पास तो अपना फिगर ही नहीं है, तो अवाम की कैसे आप बात करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये फिगर शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने वाज़िया तौर पर 2 बातें की थी शुरू में। मैंने ये कहा था कि जो रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की है, और उसके अलावा बाज़ार का रेट है। आपने शायद आप देर से आए होंगे, मैंने आपको बताया जो बाज़ार का रेट है वो कितना और मैंने 3 एग्जांपल्स भी आपको दी थी। एक चीनी की एग्जांपल आपको दी, एक मैंने आपको केले की एग्जांपल दी, और एक मैंने आपको अंडे की एग्जांपल दी। शायद आपने सुनी नहीं। वो तमाम वो रेट्स हैं कि मैंने यहाँ तक कहा कि एक तो चीनी 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिल रही, दूसरा कतारों में मिल रही है, और रियायती रेट 83 रुपये इनके मुताबिक है। और उसके बाद मैंने ये बताया कि 120 रुपये किलो चीनी भी नहीं मिल रही। ये तमाम अदाद व शुमार मैंने आपको 3 सतह पर बताए हैं। एक वो रेट जो हुकूमत का है, जो इस रिपोर्ट का है, एक वो रेट जो रियायती है, एक यूटिलिटी स्टोर का है, और एक बाजार का रेट है जहां चोर बाजारी की जा रही है। मैडम ये बता दीजिएगा, आप यहाँ पर महंगाई के हवाले से बहुत सारी बातें बता रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कब सड़कों पर आएगी इस महंगाई के खिलाफ? मुस्लिम लीग नून अगर आपको देख रहे हो तो मुस्लिम लीग नून पिछले 1.5 साल से सड़कों पर है, जिसको कल्मिनेट होना था लॉन्ग मार्च में, और इंशाल्लाह पीडीएम रिकन्वीन करेगी। और ये जो बजट आ रहा है, आप देखेंगे कि ये जो बजट है ये ना पाकिस्तान की आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी, और इनके अपने जो अरकान असम्बली हैं वो भी इसको मुस्तरद करेंगे। मरीम साहिबा, इस जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का जो पूरा एक सीन बना है, इस पर मरीम नवाज साहिबा का एक ट्वीट तक नहीं है, ना उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल दिया, कोई बयान दिया। किस पे? ये ज़मानत जो शहबाज शरीफ साहब की। दूसरा ये कि क्या घर के अंदर भी कोई जश्न मना रहा है कि ज़मानत नहीं होती तो अच्छी बात है? मेरा ख्याल में जावेद, आपने मरीम नवाज का ट्विटर उस दिन फॉलो नहीं किया। उनका पहला ट्वीट अल्हम्दुलिल्लाह का आया शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट के ऊपर, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे। मैंने भी बयान नहीं दिया, मेरा आज पहला बयान आया है, और हम वेट कर रहे थे एज अ पार्टी, एज कारकुन, कि तहरीरी फ़ैसला लिखा जा रहा है, क्योंकि अनाउंस हो चुकी है कोर्ट में बेल। और वो तहरीरी फ़ैसला 3 दिन के बाद हमें पता चला
हाई कोर्ट की वेबसाइट से कि वो अलाउड की जगह डिस्पोज्ड ऑफ हो गया और उसमें दूसरे जज साहब ने इसको इख्तलाफी नोट लिखने के लिए कहा है। और क्योंकि ये मामला सब जुडिस था, क्योंकि हम कोर्ट के मदाखलत नहीं करना चाहते थे, हम तहरीरी फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने भी आज पहली स्टेटमेंट दी है क्योंकि कल रात को लेट हमें ये पता चला और डाइसेंटिंग नोट सामने आया और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का पहला ट्वीट है। बात ये है, वो मरियम नवाज़ शरीफ के चचा भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी हैं। जितनी खुशी मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को होगी, उससे कई ज़्यादा खुशी और अल्लाह ताला का शुक्र मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने किया है कि उनके वो चचा जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जो मुल्क पंजाब की तारीख़ में इतनी खिदमत किसी ने नहीं की। आप बाकी तमाम सूबे देख लें जहाँ मुख्तलिफ पार्टीज़ थीं, उन्होंने दिन रात बीमारी की हालत में, कैंसर की हालत में पंजाब के लोगों की खिदमत की है, बल्कि वो खिदमत की है जिसके असरात और जिसकी कंट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान की आवाम को मिली है। अगर वो बिजली हो, 13,000 मेगावाट बिजली अगर नवाज़ शरीफ की क़यादत में बनी तो 5500 पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उसमें हिस्सा डाला। तो ये जो बात है, ये जो घिसी पिटी एक बात है, मेरे ख्याल में अब ये ना ही की जाए तो बेहतर है। बस भाई हो गया, अब जी कर रहे हैं। जब तक इमरान खान नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये तब्दीलियों से कुछ नहीं होता। हक़ाइक़ तो यही है कि इमरान खान को अब तक चलाने में अपोजिशन का ही किरदार है। जो कुछ पीपल्स पार्टी, ANP, बाकी सब कुछ हुआ है, अवाम तो ये समझते हैं कि आप भी बिल्कुल उसी निज़ाम का हिस्सा है कि जिसको ये हुक्म है कि ये निज़ाम चलाना है। और दूसरा, आपने इतनी तस्वीरें दिखाई, अच्छा होता कि एक तस्वीर आप ये भी दिखा देते कि रायवेंट में कंटेनर ही नहीं बल्कि जो बिल्डोज़र वगैरह हैं वो भी पहुंचे हुए थे, क्योंकि हुकूमती तर्जुमान बार बार यही बात कह रहे हैं कि वो बिल्डोज़र दिखा दें जो वहाँ गिराने के लिए लाए गए। आज की प्रेस टॉक मैंने ख़ास तौर पर महंगाई और जिस मुश्किल में, जिस कमर तोड़ महंगाई में, बेरोज़गारी में, और वो हफ़्ता जो रमज़ान का हफ़्ता था उसमें जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, मैंने वो उसके ऊपर रखी। मैंने पूरी प्रेस टॉक रायवेंट के ऊपर की थी, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले, और अब वो 27 को नोटिस हुआ है। लेकिन उस नोटिस के बावजूद एक शख्स जिससे पहले ब्रॉडशीट में कमीशन खोरी कराई गई, उनको टाउट बनाकर, और वही शख्स अब रोज़ रात को ड्यूटी पे लगा दिया गया है। 2 कंटेनर पकड़ो, 2 बुलडोज़र पकड़ो और रायवेंट चलो। जैसे ये करते हैं ना, स्टैंड अप फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री, सिट डाउन ऑन दी अदर मिनिस्ट्री। इसी तरह शहजाद अकबर, टेक 2 बुलडोजर्स एंड 2 कंटेनर्स। उनकी नौकरी 2 बुलडोजर और 2 कंटेनर के ऊपर रह गई है, मुहित है। और यही 2 कंटेनर और 2 बुलडोजर जो है ना, इंशाल्लाह, मैं अब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, पाकिस्तान की आवाम देखेगी। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel